Student, Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmi Green School, Jadeshwar Bharuch. My name is Swati Sharma and it's class 7th Maths and our chapter is Exponent and Power. Okay. So student, this is our new chapter, that is chapter number 13, and the this heading of this chapter is Exponent and Power. So what do you mean by exponent and what is power? Okay, so let's start this new chapter and this new concept also. Okay, so student, in your previous classes you learn about different type of number like whole number, integer or rational number and their properties also. Okay, so we have also learned about their various operations. हमने बहुत सारे ऑपरेशन भी पढ़े हैं पिछली क्लासेस में, like addition, subtraction, multiplication and division. Okay, in this chapter we shall learn to write number in exponential form. ओके हमारे चैप्टर का हेडिंग क्या है? एक्सपोनेंट एंड पावर. सो इन दिस चैप्टर वी लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट एनी नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके, नाउ व्हाट इज एक्सपोनेंट? सो while learning about different type of operation we learn that repeated addition. हमने क्या पढ़ा था? रिपीटेड एडिशन पढ़ा था. इट्स कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन. जब हम 5 + 5 + 5 3 टाइम अगर हम 5 + 5 + 5 करते हैं, सो दैट इज 5 × 3 and our answer is 15. So same answer we get 5 + 5 + 5, that is 15. Okay, understand? So we can write it in exponential form. Okay, so what is 5 + 5 + 5? When we added same number in how many times, so we can tell the that is a multiplication. Okay, 5 × 3, that is 15, and again we can write it 5 + 5 + 5, that is 15. Okay, and same thing if we write 2 + 2 + 2 + 2, so we know that that is 8, means 4 times 2 is 8. When we add 2 4 times, so we get 8. Okay, and same thing if we multiply 2 × 4, so we can get 8. Okay, so that is called multiplication. In the same manner we also have a shortcut to express repeated multiplication. अब हमने repeated एडिशन को हमने क्या बोला था? मल्टीप्लिकेशन बोला था. सो सेम थिंग हियर, इफ इज मल्टीप्लाई सेम नंबर हाउ मेनी टाइम, सो हम शॉर्टकट में उसे किस में लिखेंगे? हम पावर नोटेशन में लिखेंगे और वी कैन टेल देम दैट इज एक्सपोनेंट, एक्सप्रेस रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो सी हियर व्हेन वी एक्सप्रेस. अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? वाई वी need for exponent or power? So when very large number or very small number, very large number means mass of earth or distance from earth to sun. Okay, so how to represent that numbers? ओके, हम यहाँ से अगर हम किसी नंबर को पढ़ना चाहते हैं, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर आ जाएगा हमारा करोड़, 10 करोड़, देन वन मोर थिंग अरब, 10 अरब. ओके, सो 9 to 12 डिजिट नंबर तो हम इजीली पढ़ सकते हैं, बट व्हेन द नंबर इज ग्रेटर देन 12 डिजिट, सी हियर मास ऑफ द अर्थ. कितने डिजिट नंबर दिख रहा है यहाँ पर आपको? 5970, फिर 000, फिर 000, 000, 000. हाउ मेनी zeros are here? 3, 36, 39, 312, 15, 18 एंड 18 के बाद में कितना आएगा? 21. 21 के बाद अगेन 3 डिजिट नंबर है, दैट इज 21 के बाद में कितना आएगा? 24 एंड 25. सो हाउ वी कैन रीड दिस नंबर? कैन यू रीड दिस नंबर? और आप इसका कोई नाम दे सकते हैं. सो अगर इतना बड़ा नंबर है तो हम उसे कैसे लिखेंगे? और आपको पता है अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना का वायरस का साइज़ क्या है? इट इज़ वेरी स्मॉल. हमारा जो हेयर है, एक हेयर का भी 100 टाइम्स छोटा है वो. ओके, सो व्हेन वी राइट, when we want to write any big number and any small number, okay, so we can need this exponent or this power. Understand? So while
अच्छा, एक चीज़ और मैंने आपको बताई, हम जो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करते हैं डेट इज़ कॉल्ड, उसका हम शॉर्टकट फॉर्म बोलते हैं, हम उस नंबर को पावर में लिखते हैं। ओके, जैसे सपोज इफ़ यू वांट टू राइट, सी हियर, अगर हम इस टाइप से लिखना चाहते हैं, 10 कितनी टाइम है, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 4 टाइम 10, तो हम इसे लिखेंगे 10 टू द पावर 4, और we can read it 10 raised to the power 4. Okay, here 10 is the base and 4 is the exponent or power. Understand, this is called exponential form of 10,000. अगर 10,000 है तो 10,000 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, वी कैन राइट 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ओके, 10 4 टाइम अगर होंगे तो हमारा उसका आंसर आएगा 10,000। सो 10,000 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 10 टू द पावर 4, एंड हियर 10 इज कॉल्ड बेस and 4 is called exponent, or we can say that power. Understand, 10 is called base and 4 is called exponent or power. Understand, so here now you can understand ना, हम एक्सपोनेंट और पावर किसे कहेंगे। एक्सपोनेंट हमने बोला जो उसकी पावर है, राइस जो उस पर पावर चढ़ी हुई है, डेट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट और पावर। ओके, वो पावर कोई कुछ भी हो सकती है, जैसे 1000 को आप लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, मीन्स 10 कितने टाइम है, हाउ मेनी टाइम 10 हियर इन मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स, सो वी कैन राइट 10 टू द पावर 3. ओके, अंडरस्टैंड, so this way we can, and here also 10 is our exponent and 3 is our 10 is our base and 3 is our power. Okay, same thing. So, and student, you know how to write any number in expanded form. So एक्सपांडेड फॉर्म में अगर हमें कोई नंबर लिखना है, सपोज हमारे पास ये नंबर है 47561, सो इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, 4 इंटू 10,000 प्लस 7 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 एंड प्लस 1 इंटू 1, ओके, क्योंकि वो वंस का प्लेस है, सो 1 इंटू 1. Okay, so here 4 into 10, 10,000. 10,000 में कितने जीरो, how many zeros are here, 1 2 3 4, so we can write 10 to the power 4. 1000 में how many zeros are here, 3, so we can write 10 to the power 3. 100 में 2 जीरो हैं, so we can write 10 to the power 2. 10 में only 1 जीरो है, so we can write 10 and plus 1. So that is exponential form, expanded form of that number. हम expanded form 4th 5th क्लास में लिखते थे ना बेटा, तो उसी टाइप से 6th क्लास में भी हमने expanded form लिखा हुआ है. सो हम किसी भी नंबर का को expanded form में जब लिखते हैं तो हम उसे अगर इस टाइप से लिखेंगे पावर्स में, सो इट विल बी ईजी टू रीड आउट. ओके, हमारे लिए और ईजी हो जाएगा उसे पढ़ना. ओके, अंडरस्टैंड. So if you write same number, different number, that is 172, 5 जो आपको नीचे नंबर लिखा हुआ. So first of all you have to know this is our expanded form. See, this is called expanded form. ये हम 4th 5th 6th में लिखते थे. This is called our expanded form. Okay, now this is called exponential form. ये फॉर्म हमने किस में लिखा, इसको एक्सपोनेंट के पावर, मतलब हमने उसकी पावर में लिख दिया, और वी कैन से दैट इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एनी नंबर. ओके, एक्सपोनेंशियल और पावर नोटेशन, हम इसे बोलेंगे पावर नोटेशन में हमने उसे राइट डाउन कर दिया. ओके, सो अगर ये वाला नंबर हमें दिख रहा है तो यहाँ पर कितने डिजिट हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11.
So here 11 digit are here. So first of all we can, if we want to write exponential form of that number, so 1 into 1 है सबसे फर्स्ट नंबर, उसके पीछे कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So we can write 10 to the power 10 plus 7 into 10 to the power, how many zeros are here, 10 to the power 9 plus 2 into 10 to the power 8 plus 5 into 10 to the power 7 and so on. So आप इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस वे में लिख सकते हैं. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एनी नंबर. ओके, अंडरस्टैंड. सी, अगर हमारे पास कोई छोटा नंबर है, हम उसे 10 की पावर में इजीली लिख सकते हैं. एक्सपांडेड फॉर्म में लिख करके हम उसको 10 की पावर में चेंज कर सकते हैं. ओके, अगर 81 है, सो हाउ टू राइट 81 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट 81 को हम प्राइम फैक्टर्स करके उसके बाद में हम उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं. सो इफ़ यू वांट टू फाइंड 81 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, this is the prime factors, means 3 into 3 into 3 into 3. So we can write 3 into 3 into 3 into 3. So 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम. So we can write 3 raised to the power 4, and here 3 is the base and 4 is the exponent or power. ओके, अंडरस्टैंड. सो 10 to the 10 स्क्वायर, तो आप इसे क्या पढ़ सकते हैं, विच इज़ 10 राइज टू द पावर 2. ऑल्सो रीड, हम इसे रीड पढ़ सकते हैं 10 स्क्वायर, और वी कैन राइट इट 10 to the power 2. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस वे यू कैन रीड एनी नंबर इजी वे. ओके, अगर स्क्वायर 2 है पावर तो हम उसे स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं, क्यूब है तो हम उसे क्यूब पढ़ सकते हैं, तो मतलब 3 पावर है तो हम उसे क्यूब पढ़ सकते हैं. बट अगर पावर 4 5 6 है तो हम उसे बोलेंगे राइज टू द पावर 4, राइज टू द पावर 5, राइज टू द पावर 6. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस वे वी कैन रीड द एनी नंबर. एंड हियर जो नीचे नंबर होता है, डेट इज कॉल्ड बेस ऑफ दैट नंबर, एंड जो पावर होती है उसे हम बोलते हैं exponent. Okay, understand. So that is called power of exponent and power of any number. See here how to solve any number. अगर हमारे पास में -2 to the power 3 दिया हुआ है, so what is the meaning of this? अगर -2 की पावर 3 है, that means -2 का मल्टीप्लिकेशन -2 में कितने टाइम्स हैं, 3 टाइम्स. देयर इज 3 टाइम्स इन -2 इंटू -2 इंटू -2. सो हमने जो इसके पहले चैप्टर करा था, डेट इज़ इंटीजर, जो हम इंटीजर चैप्टर करे थे उसमें हमें पता है माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, एंड प्लस इंटू माइनस अगेन प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस. सो अवर आंसर इज 2 to the 4 and 4 to the 8. So our answer is -8. Okay, understand. इफ -2 to the power 4 है, सो हम इसे क्या लिख सकते हैं, -2 की पावर 4 मीन्स -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2. सो -2 इंटू -2 प्लस 4, एंड -2 इंटू -2 प्लस 4, एंड 4 4 जा 16. सो आवर आंसर इज +16. ओके, अंडरस्टैंड. सो स्टूडेंट, you know whatever the power, you have to solve that number. सी a इंटू ए को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर, और वी कैन रीड इट a स्क्वायर्ड और a राइज टू द पावर 2. अगर 3 टाइम a है तो हम लिख सकते हैं a क्यूब्ड और a राइज टू द पावर 3. ओके, एंड इफ a टू द पावर 4 है, सो वी कैन राइट इट a राइज टू द पावर 4 एंड a फोर्थ पावर ऑफ a. ओके, the fourth power of a. Understand? So this way you can read it and see if any number is given and आपको बताया गया है कि इसे पावर नोटेशन में लिखना है आपको और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. सो व्हाट कैन यू डू हियर, एक्सप्रेस 256 एज अ पावर नोटेशन. सो आप क्या करेंगे, आप उसका एलसीएम निकाल लेंगे जैसा हमने निकाला था. जैसे 256 का एलसीएम आप निकालेंगे this way, 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16 and 64, then 32, then 16. अब 16 को आप निकालेंगे 2 8 4 2 and 1.
Okay, understand? So this way we can write the any number. So student 256 को हम इस टाइप से 2 की पावर में लिख सकते हैं, 2 to the power 8. Okay, how many time 2 are here? 8 time 2 मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम उसे लिख सकते हैं शॉर्टकट मेथड में 2 to the power 8, 2 raised to the power 8, where 2 is the base and 8 is the exponent. Okay, understand? Now next question, अगर हमें इस टाइप से कोई क्वेश्चन लिखा दिया हुआ है which one is the greater? So 2 cube and 3 square, इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है? तो आप पहले उसे सॉल्व करके देखें. 2 इंटू टू इंटू टू, 2 का क्यूब मीन्स क्या मतलब है उसका? द मीनिंग ऑफ 2 क्यूब इज 2 इंटू टू इंटू टू. 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 में कितने टाइम है? 3 टाइम. ओके, एंड वैसे ही 3 स्क्वायर, 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 में कितने टाइम है? 2 टाइम. ओके, सो 2 क्यूब मीन्स 8 एंड 3 स्क्वायर मीन्स 9. सो विच वन इज ग्रेटर? 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 cube. Okay, understand? So this way you can find the answer. Okay, 8 square that is 64 and 2 raised to power 8 that is 256. So 2 raised to the power 8 is greater than 8 square. Okay, now अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है, एक्सपांड a क्यूब b स्क्वायर b क्यूब, और इन सबको आर दे आर सेम. क्या ये सब सेम है? a क्यूब मीन्स a 3 टाइम है एंड b 2 टाइम है. सी, और a स्क्वायर मीन्स a इज 2 टाइम एंड b इज 3 टाइम्स. ओके, सो क्या आपको ये सेम दिख रहे हैं? सो सेम कौन कौन से नंबर हैं? सो यस, b स्क्वायर एंड a क्यूब, दैट इज फर्स्ट वन एंड थर्ड वन इज सेम एंड सेकेंड वन एंड फोर्थ वन इज सेम. ओके, अंडरस्टैंड? सो वी कैन राइट इट first and third is the same number, means a cube b square or a square b cube. The power of a and b are different, thus these are different. Okay, and a cube b square and b square a cube are the same since the power of a and b are same. Okay, so this way you can find the same numbers. Okay student, now see the next question, example number 5. Express the following number as a product of power of prime factors. So आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है. 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 432 का, 1000 का एंड 16000 का, एंड देन राइट डाउन द नंबर्स. ओके, अंडरस्टैंड? नाउ वर्क आउट 1 raised to the power 5 minus 1 raised to the power 3 minus 1 raised to the power 4 minus 10 raised to the power 3 and minus 5 raised to the power 4. So first of all you have to know if negative number having odd power, odd number means 1 3 5 7 9, अगर odd power से तो हमारा आंसर always नेगेटिव आएगा. एंड if any negative number having even power, so your answer become always positive. ओके, अंडरस्टैंड? सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो सब आपको याद रखना है. अगर नेगेटिव नंबर हैविंग ऑड पावर, सो योर आंसर इज ऑलवेज नेगेटिव, एंड नेगेटिव नंबर हैविंग इवन पावर, सो योर आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, अंडरस्टैंड? सो नाउ 13.1, लेट्स डू 13.1 एक्सरसाइज. Find the value of 2 raised to the power 6. So what is the meaning of 2 raised to the power 6? Means 2 into 2 into 2 into 2. Okay, so we will multiply 2 2s are 4. 2 into 2 कितना हो गया? 4. Okay, now 8. Now 16. 32 and 32 into 2 that is 64. So your answer is 64. Okay, so this way you can write the exponential form of any number. Okay, आप इसे वैल्यूज की फाइंड कर सकते हैं. 9 क्यूब, what do you mean by 9 cube? Means 9 into 9 into 9. Okay, means 9 9s are 81 and 81 9s are बोलिए
So let's do 9 9s are 81 and 81 9s are 9 1s are 9, 9 8s are 72. So our answer is 729. Okay, understand? So this way you can solve question number first. Now express the following in exponential form. So here how many 6 are here? So count the 6, 1, 2, 3 and 4. So you can write 6 raised to the power 4. Okay, how many t are here? 2. So t raised to the power 2. How many b are here? 4. So b raised to the power 4. Okay, understand? Now fourth one. 5 कितने टाइम दिख रहा है आपको? 2 टाइम. 7 कितने टाइम दिख रहा है? 3 टाइम. So this is your answer. 2 square into a square. वन मोर थिंग, आप लोग जब इसे स्क्वायर या पावर लिखते हैं तो पावर लिखने के लिए आपको हमेशा बेस हमेशा आपका थोड़ा सा बड़ा साइज में बड़ा होना चाहिए. पावर हमेशा थोड़ा सा ऊपर की साइड लिखिए, अदरवाइज आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो मल्टीप्लिकेशन है या पावर है. ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस वे you can write the power of any number. Okay, so first and second question you have to complete in your notebook. Then see the question number third. Express each of the following number using exponential notation. So मैंने आपको बताया है आपको exponential notation में किस टाइप से लिखना है. से 5 1 2 का आपको क्या निकाल लेना है? LCM, prime factors. Okay, and then write it down in exponential form. Okay, so first, second, third question is your homework. Complete the question in your notebook. Okay student, if you have any doubt in question number first, second and third, you can ask me on WhatsApp. Okay, have a good day.